Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Economics. Let me welcome you all to CA Foundation. You have taken a dramatic step towards your successful career orientation. I am your teacher for economics and law. I'm Chartered Accountant and Company Secretary. I'll teach you business economics. I've done my PhD in e-commerce, known the whereabouts of economics and commerce. FCA, Fellow Chartered Accountant, Licensed Company Secretary, Diploma in Information System Audit. I've done my law as well, thereby I teach law as well, and Masters in Commerce I've done. This session is an introductory session of what's what about the syllabus, what chapter, which chapter, how much marks does it, weigh, how much importance is to be given. To be honest, all the lectures will be amazing with powerful PowerPoint presentations, but okay, we should know what do we need to study more. So guys, yes, this session is about the introductory session of economics, about knowing what this subject contains, also how much marks every chapter carries, because exam orientation is also a perspective. CA Foundation, there are 4 subjects: accounts, laws, business लॉज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा फाउंडेशन लेवल पे, तो आप इंटर लेवल पे जाके कॉर्पोरेट लॉज समझ पाएंगे. Business mathematics and LR stats, this subject is for 100 marks. This is MCQ based, and our subject जिसके बारे में हम introduction दे रहे हैं, this is also MCQ based. All the subjects 400 marks, and you have to score 50%, that is 200 in the entirety. But out of 400, 200 should not be the criteria for studying. You should try to score, heavy you should attempt, heavy you should aspire to get. So guys, 100 marks each subject. Every subject you need to score 40 marks. Every subject you need to score 40 marks. So chalo, target kitna hona chahiye? Yes, Aisha, what should be your target out of 400? Bolo. 350, राइट. 380 का टारगेट होगा ना, तो 340 350 के आसपास मिलेंगे. हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स लास्ट अटेम्प्ट में, वेदांत जयपुरिया, he had scored 97 marks in economics. Alright, so I just hope आप भी huge score करें. बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 marks. The paper is completely MCQ based, लेकिन तुक्का नहीं मार सकते आप. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप तुक्का मारते हो जनरली, लेकिन सी एग्जाम में आप तुक्का नहीं मार पाओगे, क्योंकि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा. ऑलराइट, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अबाउट द करिकुलम. डायरेक्टली जाते हैं. हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका हम लोग पहले जस्टिफिकेशन समझ लेते हैं. व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? व्हाट डू वी डू? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर multitasking. Because we are good at accounts, we are good at audit, we are good at finance, we are good at costing, we are good at law, we are good at management, we are good at IT, we are good at everything when it comes to business. Chartered accountant is a total business solution. हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये माना जाता है कि आप इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करोगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. यू आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिस्ट. इंडिया के पर्सपेक्टिव से याद रखना. ओके, एनालिस्ट बनते हैं हम लोग जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा एग्जाम देते हैं, तो वी बिकम एन एनालिस्ट. व्हाई शुड यू ज्वाइन माय क्लास? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आपको हर लेक्चर के लिए मिलेंगे पावरफुल प्रेजेंटेशंस, और हमने स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में हैवी. अ लॉट ऑफ ओनस इज ऑन इकोनॉमिक्स कि हम लोग इस सब्जेक्ट में हैवी स्कोर करें, क्योंकि थोड़े लॉ और मैथ इन सब्जेक्ट्स में इतना हैवी स्कोर स्टूडेंट्स का संभव नहीं हो पाता है. तो एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इकोनॉमिक्स इज द गो टू सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. सो गाइस, दैट्स व्हाई यू शुड स्टडी इट वेल. स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इंस्पायर्ड है. और आपको 2 बुक्स मिलेगी इकोनॉमिक्स की, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. बिजनेस का पर्सपेक्टिव रहेगा जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. सो गाइस, जब हम हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वी हैव 5 चैप्टर्स: नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, एंड बिजनेस साइकिल्स. लेकिन सो दिस इज बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब हम पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, when we study it from the point of view of the entire country, we have macroeconomics related chapters: determination of national income, international trade, public finance, money market, and
ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी। नए सिलेबस से पुराने सिलेबस में ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स आर दीज 5 चैप्टर्स आर न्यूली एडेड। सीए इंटर में ये सारे 5 सब्जेक्ट्स थे, सारे 5 चैप्टर्स थे, हूबहू ये चैप्टर्स आ गए सीए फाउंडेशन में। नए कोर्स के मुताबिक अब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं रहा, उसके जगह बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पहले 60 मार्क्स का था अब वो 100 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स के एडिशन में आपको ये 5 चैप्टर्स उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। नेवरदलेस सर सिलेबस इजी हुआ या डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट डिस्कसिंग दिस। जो भी एग्जाम है, जो भी चैप्टर है, हम पढ़ेंगे, हम केटर करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम पास करेंगे, end of the story. Okay, so guys, yes, chalo, let's start with the very first chapter. ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स गाइस, वी हैव 2 units in this: introduction and basic problems of the economy and role of price mechanism, how different economies solve their problem and how price mechanism helps to solve the basic problem of any economy. The very first chapter has a due weightage of 5 marks. Okay, just everyone please make a note of this. First chapter, the weightage is 5 marks, and this is ICI prescribed weightage. ठीक है, इसमें 5-10% का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन दिस इज आईसीआई, ये कुछ मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस करके नहीं निकाला है, दिस इज आईसीआई प्रिस्क्राइब्ड। 5% का वेटेज है चैप्टर फर्स्ट को। सेकंड चैप्टर वी हैव थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर 3 यूनिट्स है: लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड यूनिट 3 सप्लाई। This chapter has a weightage of roughly 10 marks. So there can be question for 9 marks, there can be question for 11 marks as well. So guys, roughly this will be asked for 10 marks. Then we have the next chapter, theory of production and cost, जिसके अंदर we have 2 units: theory of production जिसमें capital और entrepreneurship आपको सिखाया जाएगा, और theory of cost जहां पे numerical questions पूछे जाएंगे आपको। Again, this is given a due weightage of 10 marks. Then we move on to the 4th chapter, meanings and types of markets. Meanings and types of market में we have 3 units: meanings and types of market, determination of prices, कितना प्राइस और कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है ताकि हमें अच्छी कॉस्ट पे प्रोडक्ट बन जाए, ताकि प्रॉफिट का रेशियो हाई हो। इसके लिए चैप्टर 4th, मैग्नोमिनस चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, 15 मार्क्स का वेटेज। फॉलोड बाय अ स्मॉल चैप्टर, बिजनेस साइकिल। This has been given, ठीक है, बिजनेस साइकिल के अंदर what are the various indicators of business cycles, what are the various phases of business cycles, ये डिस्कशन हुआ है। 5 मार्क का वेटेज है, छोटा सा चैप्टर, एक भी मार्क्स मिस नहीं होने देंगे। देन चैप्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। अगेन न्यू करिकुलम ऑफ आवर सिलेबस, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ओके, जिसके अंदर नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। Okay, so yeah, we have 2 units: determination of national income and Keynesian theory of determination of national income. Again, a big chapter and has a due weightage of 15 marks. We move ahead. Chapter 7, public finance, जिसके अंदर we have 4 units: fiscal functions, market failure, government interventions to correct the market failure, and fiscal policy, due weightage of 10 marks. Followed by, हमारा syllabus is all about money, पैसों को लेकर, तो मनी मार्केट से रिलेटेड एक चैप्टर है हमारे पास: कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे यूनिट्स इसमें केटर किए जाएंगे, 10 मार्क्स का वेटेज। देन अगेन penultimate chapter, international trade, we'll study about import and export, we'll study about theories of international trade, we study about instruments of trade policy, we study about trade negotiation, exchange rate, and इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट मूवमेंट, पैसा यहां से वहां कैसे जा सकता है, 10 मार्क्स का वेटेज। एंड द लास्ट चैप्टर, इट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, इंडिया ने ट्रेडिशनली कैसे ग्रो किया है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल और फैक्ट्स और फिगर्स वाला ये सिलेबस है, एंड या दैट विल रेंडर यू 10 मार्क्स। ऑलराइट, सो गाइस, या दैट्स द एंटायर सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड चैप्टर्स, every lecture, every paragraph, everything you will get powerful presentations along with relevant corporate examples. कम से कम समय में आपका सिलेबस क्लियर कर दूंगा।
ओके कम से कम सिलेबस में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की क्लास पुणे में होती है, दिल्ली में होती है, नागपुर में होती है। सारे फेस टू फेस में हम डाउट सॉल्व करती है। जो लोग पीडी जीडी या फिर ऐप बेस्ड क्लासेस अटेंड करते हैं उनके डाउट्स भी सॉल्व होंगे, और वो डाउट्स आपके सॉल्व होंगे व्हाट्सएप के मेरे इस नंबर से। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इंस्टाग्राम मी ऑन InstaNDSCO PAVANN, एंड आपको जरूर से जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल राइट, विल वर्क हार्ड फॉर यू, विल वर्क हार्ड टुगेदर एंड विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके सो गाइस, कहीं भी अगर किसी भी सिलेबस में, किसी भी क्लास में मैंने बीसीके का अगर जिक्र किया हो गलती से, तो वो आदत के कारण किया है। कहीं भी अगर मैंने बीसीके का जिक्र किया है तो वो आदत के कारण है, बिकॉज आई बीन टीचिंग बीसीके फॉर 6 years नाउ। तो 6 साल से, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते बीसीके जो ओल्ड कोर्स का वर्ड है, ओल्ड कोर्स ही था 40 मार्क का, अगर वो आ जाता है तो आप ये मत समझना कि हमें पुराना सिलेबस पढ़ा रहे। सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है, एक वर्ड भी नहीं बदला है, एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं हुआ है। तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट बीसीके का आता है तो आप घबराना नहीं, because it was an integral part of economic syllabus for 6 long years. तो या दैट्स दैट फ्रॉम माय एंड। 4 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्लास खत्म होने तक दिस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई कैन बेट। 400 मार्क्स है, हम लोग 50% इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू स्कोर टू पास, एंड विल मेक श्योर कि हम लोग 300 क्रॉस करें आसानी से। और हम लोगों को 97 मार्क्स, वेदांश जयपुरिया का 97, ये स्कोर हमें ब्रीच करना है। All right. So, guys, yeah, that's that from my end. This is Pavan Gauka signing off. Thank you so much. See you with lectures. Start studying, study well, plan yourself well. You have ample time to score huge study well in for this CA foundation course. I wish you CA enter. I wish you lots of success for CA foundation course. All the best.